welcome to our channel. Today we are discussing about dancing on the chapter name, but this is simplified about dancing on by Saleja Ganguly. It is the story like Helen Keller, and so this is the point so you can remember and study. This is the story very deeply. I will tell about you. First, we will study for chapter starting Allah Ripu Saddam Varnam Vadam. These were strange words for the audience in the packed auditorium in Washington. These are the strange words you can note. Allah Ripu Saddam Varnam Padam, four strange words which is packed auditorium in Washington. But as the younger dancer from India, looking splendid in her traditional costume, explained each item before she began her dance, they began to understand the Bhava, Raga, and Tala of Bharatanatyam. So you can understand this like this. जब ये सुधा ये सुधा नाम करके लड़की थी जो कि सबसे पहले ऑडिटोरियम में मतलब जब भी वो डांस अपना आइटम पहले बताती हैं, फिर उसके बाद डांस के वावा, रागा, ताला, ये सब जो भी चीज़ें हैं वो बताती हैं पहले, फिर उसके बाद वो अपना डांस परफॉर्मेंस देती हैं। ये भारतनाट्यम के भावा, रागा, ताला ये आप नोट कर लीजिएगा। इमोशन, मेलोडी, रिदम, दिस आर द emotions, these are the Bharatanatyam steps. You can also know. About 10 years ago, Sudha was a promising 17-year-old dancer with more than 80 performances behind her. वो 10 साल की उम्र से वो 17 साल की उम्र तक में ओल्ड डांसर, बहुत पुरानी नृत्य होता है जो कि 80 से भी अधिक 80 परफॉर्मेंस बिहाइंड हर 80 परफॉर्मेंस कर चुके हैं। एंड देन वन डे शी वाज इंजर्ड इन ए रोड एक्सीडेंट अबाउट 25 किलोमीटर फ्रॉम तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु, वेयर द फैमिली हैड गॉन फॉर देयर एनुअल पिलग्रिमेज। तो जब वो एक दिन जा रही थी तब वो रोड एक्सीडेंट में वो बहुत ही ज़्यादा घायल हो गई। वो 25 किलोमीटर तिरुचिरापल्ली से 25 किलोमीटर दूर तमिलनाडु स्टेट है, जहाँ की उसके फैमिली एनुअल पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रा पर गए थे। तो वो उस दिन हादसे का शिकार हो गई। Perhaps she was not treated properly at the local hospital where she was rushed. In any case, her injuries result in a gangrenous infection. When she was taken to Chennai, the doctor there tried hard to stop the growth of the infection, but finally they were forced to amputate her right leg from about 8 centimeter below the knee. वो उसका लोकल हॉस्पिटल में तो कुछ अच्छे से ट्रीट नहीं हो पाया और वो इंजरीज में फंस गए और उनका इन्फेक्शन हो गया पैर में। वह जब उनको चेन्नई ले जाया गया, फिर वहाँ डॉक्टर इन्फेक्शन को रोकने का बहुत प्रयास किए, पर उन्हें फोर्स किया गया कि उनका जो राइट लेग है उसे काटना पड़ेगा। एम्पीट्यूड मीन्स टू कट ऑफ, यू कैन राइट दिस ऑल्सो फ्रॉम इट। और उनका जो पैर है वो 8 सेंटीमीटर बिलो नी, मतलब अंगूठे से लेकर उनका 8 सेंटीमीटर तक उनका पैर काटना पड़ गया। In the travel months that followed, Sudhar Search began to find a way of dancing again. The day I met Dr. Pramod Sethi, I knew that my dream would come true. She says Dr. Sethi had won the Magsaysay Award for his development of Jaipur Foot, an artificial limb made from vulcanized rubber filled with sponge. Sudha acquired a Jaipur Foot and began her determined journey back to the world of Bharatanatyam, learning to balance, bend, stretch, walk, twist, turn, and finally dance. Her doctor, physiologist, her parents, her guru were all a part of her patient effort. On October 27, 1982, she gave a Guru Dakshina, a traditional Thanksgiving ritual at the residence of her Guru. It was truly a miracle. तो आप इसमें समझने का प्रयास करिएगा। जब इन द ट्रैवल मंथ दैट, जब वो बहुत महीने हो गए तो वो सुधा जो है वो सर्च करने लग गई, और जब वो डॉक्टर प्रमोद सेठी से मिली तो उसका सपना जो है वो सच होने लगा। सीसेस डॉक्टर सेठी को उसने बोला, सीसेस डॉक्टर सेठी जो डॉक्टर सेठी थे वो मैग्सेसे अवार्ड जीते थे। फिर उनके
विकास के लिए जो जयपुर फूट होता है आर्टिफिशियल जो मैन मेड होते हैं, वो उस पे उन्होंने जयपुर फूट को जीता। और डेवलपमेंट के जरिए वल्कनाइज मतलब आप दोस्तों समझ सकते हैं जो ट्रीटेड विथ सल्फर ग्रेट हीट टू मेक रबर स्ट्रोंगर, जो सल्फर डाल के बहुत ही स्ट्रोंगर वल्कनाइज्ड इसे बनाते हैं, उसे वल्कनाइट बोलते हैं। रबर फील्ड विथ स्पॉन्ज। सुधा एक्वायर्ड जयपुर फूड। सुधा को फिर जयपुर फूड मिल गया और वो जो है अपने नई दुनिया मतलब नई दुनिया में वापस आ गई भारतनाट्यम के, और वो बैलेंस करना सीख गई और बेंच मोड़ना, इधर होना उधर होना, तो स्ट्रेच करना, ट्विस्ट करना और टर्न एंड फाइनली डांस, और फिर वो डांस भी करना सीख गए। हर डॉक्टर फिजियोलॉजिस्ट हर पेरेंट्स हर गुरु। उसके जो डॉक्टर थे और फिजियोथेरेपिस्ट और जो भी उसके पेरेंट्स थे, वे सब उसके पार्ट थे। और 27 अक्टूबर 1982 वो गुरु दक्षिणा के रूप में उसके गुरु को दी। इट वॉज ट्रूली यह बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ। व्हाट वॉज द मिराकल। दोस्तों आप इस क्वेश्चन का आंसर भेज सकते हैं। व्हाट वॉज मिराकल, मिराकल क्या होता है। On January 28, 1984, Sudha made a historic comeback by giving a public spectacle in Mumbai. The performance was notable for its classical equality. Everyone warmly welcomed the return of the talented dancer. जनवरी 28 जनवरी को 28 जनवरी 1984 सुधा ने ऐतिहासिक ऐतिहासिक कमबैक दिया, जो कि पब्लिक प्रैक्टिकल मतलब पब्लिक प्रैक्टिकल मीन्स पब्लिक में अपना दोबारा से अपना परफॉर्मेंस दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था। एवरीवन वार्मली वेलकम, और उन्होंने एकदम वार्मली एकदम अच्छे से वेलकम किया उसका, सुधा चंद्रन जी का। और ये जो टैलेंटेड डांसर है बहुत ही टैलेंटेड है, रिटर्न हुई। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। हर फादर के डी चंद्रन से आफ्टर एवरी परफॉर्मेंस to Sudha used to Sudha used to ask, "How was it, Daddy?" And I used to tell her that she still had to improve a lot. But on January 20th, when she asked me the usual question, I did not say anything. I just touched her feet. It was by tribute to a great artist. जब उनके फादर के डी चंद्रन वो बोले, हमेशा सुधा ने बोला आफ्टर एवरी परफॉर्मेंस, तो सुधा बोलती थी कि पापा मेरा डांस कैसा रहा। पर वो हमेशा पहले वो बोलते थे कि आपको और ज़्यादा इम्प्रूव करना होगा अपने आप को। पर 28 जनवरी को उन्होंने वही क्वेश्चन पूछा सुधा चंद्रन ने, तो उनके पापा ने अ, उन्होंने कुछ नहीं बोला और उनके सीधे पैर को छू लिया, जो कि इनका भाग्य था इतने ग्रेट आर्टिस्ट से मिलने का, और इनके पापा थे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए, Sudha amazing success story took an interesting turn when a Hyderabad film producer decided to make a Telugu film not just based on her story but with her in the main lead. और जो सुधा का अमेजिंग सक्सेस स्टोरी हुआ, वो बहुत ही टर्न हुआ, जो कि हैदराबाद के जो फिल्म प्रोड्यूसर थे, उन्होंने ये निर्णय लिया कि तेलुगु फिल्म जो बनेगी वो इन्हीं की सुधा चंद्रन जी की ही स्टोरी पर बनेगी। Mayuri success encouraged him to dub the film in Tamil and Malayalam, remake it in Hindi as Nache Mayuri, and Sudha Chandran had yet another birth as film star. और जो उनका सफ़र हुआ, फिर उन्होंने नाचे मयूरी मयूरी सक्सेस इनकर्ट मतलब जो मयूरी सक्सेस इसके बारे में स्टोरी बनाया और इसको डब किया गया, जो तमिल में बनाया था उसको मलयालम और हिंदी में भी बनाया गया, जिसके नाम से नाचे मयूरी का नाम रखा गया। और सुधा चंद्रन जो थी उनका जन्म अब फिल्म अभिनेत्री के रूप में हो गया, फिल्म स्टार। शी हैज़ सीन्स एक्टेड इन some 3 dozen films several languages and has also just completed producing a Kannada film, Kalla Bhimani, based on the true life of Balana, a deaf artist who went on to become a great
actor Balana 74 has 400 Kannada films to his credit and he is still in demand। तो आप इस पे समझने का प्रयास करिए। जैसे कि मयूरी चंद्रन जी फिल्म अभिनेत्री बनी, शी वाज सिंस एक्टेड इन, और उन्होंने लगभग 3 डजन फिल्म में काम किया और अलग अलग लैंग्वेज में। एंड वो कनाडा फिल्म कलाभिमानी ट्रू लाइफ, बलाना के ट्रू लाइफ पर भी एक फिल्म बनाया। ये डीफ आर्टिस्ट मतलब दोस्तों, डीफ मतलब होता है जो गूंगा हो। आर्टिस्ट हु वेंट ऑन टू कम ए ग्रेट कैरेक्टर एक्टर, जो कि बहुत ही बड़ा एक्टर बन गया। बलाना 74 हैज़ 400 कनाडा फिल्म, जो बलाना के हैं वो 400 कनाडा फिल्म बने हुए हैं। और ये और ये अभी तक भी डिमांड में है और ये डिमांड में चल रहा है। Sudha says, if Helen Keller could overcome her handicap, so can I, is what I have always told myself। क्या हेलन किलर जब अपने आप को हैंडीकैप कर सकती है, और ऑलवेज टोल्ड माई सेल्फ, जो हमेशा अपने आप को और कभी भी अपने आप को जो है खरा नहीं समझती। तो दोस्तों, आप नीचे वाले क्वेश्चन का आप आंसर दे दीजिएगा। पॉइंट आउट सिमिलरिटीज़ बिटवीन हेलन किलर एंड सुधा चंद्रन। हेलन किलर और सुधा चंद्रन के बारे में आप सिमिलरिटीज़ क्या क्या मिलती जुलती बातें हैं उसे आप लिखिए। द सुधा रिमार्क्स इट वॉज हिज सी रिप्लाई टू हर इंडियन फैंस हु wrote to her in the thousands after release of her films। People wrote to say that they were inspired by my story and that it had given them new hope। I do feel thrilled that my message has got across। सुधा फिर बोली कि मेरा जो इंडियन फ़ैन है, भारतीय नागरिक जो मेरे फ़ैन हैं, वो थाउजेंड्स है, बहुत ही थाउजेंड्स हो गए आफ्टर फिल्म के रिलीज़ होने के बाद। पीपल वर टू से दैट दे वेर इंस्पायर्ड, और उन्होंने ये भी बोला कि हम आपके स्टोरी से बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित और इंस्पायर्ड हुए हैं। आई फील थ्रिल्ड, मैं बहुत ही एक्साइटमेंट स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो है एक्साइटमेंट हुए मेरे को। थैंक यू सो मच। मैसेज हैज़ गॉट, आई डू फील थ्रिल्ड दैट मे मैसेज हैज़ गॉट अक्रॉस, और उन्हें मैसेज मिल गया। वाट इज़ दैट मैसेज, वो मैसेज क्या था? The seed of achievement lies in human mind। When the realization comes, there is no looking back। Once I decided that my handicap was not going to stop me from dancing, that was it। Simplified from Dancing on by शैलेजा गंगुली। तो दोस्तों, हमें इससे ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। हमें कभी भी अपना जो सहनशीलता है, हमें कभी भी नहीं खोना चाहिए। हमें हमेशा खरा उतरना चाहिए। हमें हमेशा कुछ भी हो जाए पर हम अपना जो भी है लक्ष्य उसको ना खोएं, तो हम हमेशा अपने लाइफ में सक्सेस होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो में इतना ही। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, समझाने में थोड़ी गलती हुई तो उससे माफ़ करिएगा। थैंक यू।